Good morning, students. Today we are going to discuss another topic in the same chapter, morphology of flowering plants, and the topic is family Solanaceae. Family Solanaceae. So, in my previous lecture, I have discussed the family Fabaceae, and this topic is Solanaceae. Now, let us start with the topic. See, as usual, whenever a family is described, we used to first of all tell something about the family, and then we start with the vegetative characters, then floral characters and its parts. So naturally, we will be starting with the general aspects of this family as such. This family is very large family. It is also called as, it is famously called as potato family also. Potato family, because potato is an important member of this family. Okay, now let us start with something. Okay, important things as such. Let me tell you that in this family, mostly the plants are either herbs, shrubs, but rarely trees. So and also they are small trees as such. So the plants are mainly herbs, shrubs and rarely small trees. Now the stem, it may be solid, hollow, may be aerial, erect, branched, hairy. Hairy means you know that some hair-like structure appear on the stem, or glabrous, that is smooth. It may be branched, hairy, solid, hollow, aerial, erect, branched, hairy or glabrous. Okay, this is about the stem. Let us talk about the leaves which are present in this family. The leaves have reticulate venation, are present. Exstipulate, that means stipules are not present. Exstipulate leaves. Generally the leaves are simple. Very rarely they may be compound leaves. Generally the leaves are simple leaves. Okay. Now these are the vegetative characters we have discussed. Now let us discuss about the floral characteristics. Inflorescence. It is solitary, it may be solitary, or cymose type. Solitary or cymose type, that is the inflorescence. Let us talk about the flower parts. The flower is generally actinomorphic. Actinomorphic, you know, it has a radial symmetry and it is bisexual. Bisexual flowers are present. Flower is bisexual and actinomorphic. Now let us talk about other flower parts as such. We will be discussing about flower parts.
flower parts. Firstly, we will be discussing about calyx. It is also called as sepals. Calyx or sepals. Mostly the calyx or sepals is 5 in number and united. Estivation is generally valvate type. So 5 in number united and with valvate estivation. You know valvate estivation. Here the margins, जो मार्जिन्स होते हैं कैलेक्स के या सेपल्स के, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं सेपल्स, वॉल्वेट एस्टिवेशन. वॉल्वेट एस्टिवेशन. तो ये कैलेक्स का है. 5 नंबर में होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और जो एस्टिवेशन होता है वो क्या होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट petals or corolla. Petals or corolla. Again ये भी 5 in number है, यूनाइटेड है, और इसका एस्टिवेशन है वॉल्वेट. वॉल्वेट एस्टिवेशन. एक खास बात है, इनके जो पेटल्स होते हैं वो एंड्रूशियम के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि स्टेमन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो एपीपेटालस कंडीशन यहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्रिंजल में प्रेजेंट है. ब्रिंजल इसी की फैमिली का मेंबर है. तो वहाँ पे जो पेटल्स होते हैं वो एंड्रूशियम के साथ, यानी कि स्टेमन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ओके. तो ये हो गया आपका कोरोला के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंड्रूशियम. एंड्रूशियम और स्टेमेंस 5 इन नंबर है. 5 इन नंबर और एपीपेटालस कंडीशन है. एपीपेटालस कंडीशन है यहाँ पे. एपीपेटालस कंडीशन है, पेटल्स के साथ जॉइंटेड है. ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट गाइनीशियम. गाइनीशियम सुपीरियर है. सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट एंड इट इज बाइकार्पिलरी. with number of ovules. बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो प्लेसेंटेशन है उसको हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. ये यहाँ पे परसिस्ट एग्जिस्ट करती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, AXILE. एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है. तो बाइकार्पिलरी है, ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है. ये सारी चीज़ें हैं. ओके. सो दिस इज अबाउट गाइनीशियम. नाउ एज यूजुअल लेट अस टॉक अबाउट द floral formula and floral diagram now, but before that I will like to tell you the economic importance of this family. Economic importance. बहुत important family है. The members of this family are potato, tomato, brinjal, spice में
स्पाइसेस में जैसे कि चिली इम्पॉर्टेंट मेंबर है, चिली इज इम्पॉर्टेंट मेंबर। मेडिसिनल प्लांट में अश्वगंधा और एट्रोपा बेलोडोना, एट्रोपा बेलाडोना और अश्वगंधा इसी में प्रेजेंट है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पिट्यूनिया इसी का मेंबर है। सो इतने सारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली एज सच। पोटैटो भी इसी फैमिली का मेंबर है, और क्योंकि पोटैटो बहुत फेमस होता है इसलिए इसको इन अ लार्ज हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, सोलानेसी को। नाउ लेट अस write the floral formula and the floral diagram of this family. फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, और उसका सिंबल ऐसा होता है। और फिर क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है इसीलिए जो सिंबल है वो ऐसे लगेगा। अब इसमें कैलेक्स जो है वो 5 नंबर में प्रेजेंट है तो ऐसे, कोरोला भी 5 नंबर में प्रेजेंट है तो ऐसे, स्टेमेंस भी 5 नंबर में प्रेजेंट है तो ऐसे, लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं, एपिपेटालस कंडीशन शो करनी पड़ेगी। गाइनीशियम जो है वो 2 नंबर प्रेजेंट है और साथ ही साथ जो है वो सुपीरियर है, इसलिए नीचे की तरफ साइन बनाना होगा इसका, ऐसे करके इस तरह से शो करना होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। फ्लोरल डायग्राम ये हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला। Okay, now let us talk about floral diagram of this family. ये हो गया आपका कैलेक्स। ओके, कैलेक्स 5 है, 1 2, इसको और थोड़ा ऐसे बना दें हम, थोड़ा स्पेस इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ से ऐसे, ऐसे शो करें। कैलेक्स हो गया। फिर से एक बार बना दें। ये है आपका कैलेक्स। 5 है, 1 2 3 4 5। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, मार्जिन्स इसके एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए मार्जिन्स को ऐसे दिखाया गया, मार्जिन्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, तो ये कैलेक्स हो गया।
अब हम लोग जब पेटल्स दिखाएंगे तो पेटल्स भी इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट। ये भी वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, इसीलिए इसको भी आप टिप मार्जिन्स टच करते हुए नहीं दिखा सकते। ओके, तो बाहर वाला हो गया सेपल्स, अंदर वाला हो गया पेटल्स। अब इसके बाद जब एंड्रोशियम बनाएंगे तो 5 नंबर में बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, पेटल्स एंड्रोशियम के साथ कनेक्टेड है यूं। हर पेटल्स जो है हर एंड्रोशियम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि मतलब हर पेटल्स जो है हर स्टेमिन के साथ कनेक्टेड है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यूं हो गया। ये आपका हो गया एंड्रोशियम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एपिपेटालस कंडीशन। और जो अंदर है वो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसी को हम बोलते हैं कि ओवरी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए ओव्यूल्स सेंटर पे, और ये क्योंकि ओवरी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, यही वजह है इसको फ्री सेंट्रल नहीं बोलते बल्कि एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो दिस इज द floral diagram of family called Solanaceae। ये फ्लोरल डायग्राम है फैमिली का, थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है सारे पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है आपका कैलेक्स है, ये है आपका कोरोला, ये हैं आपके स्टेमेंस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अंदर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सॉरी, अंदर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है गाइनीशियम, GYNOECIUM। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पोटैटो फैमिली, इसके बारे में कैसे फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है, डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।